for God to fight a created angel. परमेश्वर होते हुए उसकी तौहीन है कि वो एक बनाए हुए स्वर्गदूत से लड़ाई लड़ता। Okay, people think that it's a fight between God and Satan. लोगों को लगता है कि परमेश्वर और शैतान के बीच लड़ाई है। He's just a created angel. वो एक- Devil is just a created angel. वो एक बनाया हुआ स्वर्गदूत है, शैतान एक सृष्टि किया हुआ दूत है। He's not omnipresent, he's not omniscient, वो सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है and he is not all powerful. और सर्व सामर्थी नहीं है। He's a created angel. वो एक बनाया गया स्वर्गदूत है। Okay? So God didn't defeat him as God. तो परमेश्वर ने उसको परमेश्वर होते हुए नहीं हराया। Okay, but before I go into the word, What's let me just put some breaks. Okay? I want to tell you that I have written my second book. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी है। This book is called You Have Authority. इस किताब का नाम है कि तुम्हारे पास अधिकार है। Amen. This is just a demo copy, so ये एक डेमो we will कॉपी है। release it on Easter. ईस्टर पे इसको रिलीज करेंगे हम। Okay, but here I have written principles from the Word of God that will make you walk as a victorious champion. पर इसमें मैंने वो सिद्धांत लिखे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आपको एक जयवंत योद्धा की तरह चलने में बल देंगे। Amen. So we are going to see devil as God sees devil. तो हम शैतान को उस नजरों से देखेंगे जिससे परमेश्वर उसको देखता है। Defeated. हराया हुआ। So I'll just give you a sneak peek from the book, teach you a little bit. मैं आपको थोड़ी सी झलक देना चाहता हूँ, किताब में से सिखाना चाहता हूँ। But full teaching will be in the book. Amen. Come on, we'll just pray. Heavenly Father, we worship you. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, We adore you, we glorify you. हम आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता, आप एक बहुत अच्छे पिता हैं। Lord, you are a very good father. आप ज्योतियों के पिता हैं। You are the father of lights. आपने अनंत के पहले से प्रभु और अंत तक आपने केवल हमारे लिए भला सोचा है। From eternity till the end, you have only thought good for us. आपका वचन कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे लिए उस रेत के कणों से भी ज्यादा हैं Your जो word, समुद्र के पास है। your word says, my thoughts for you are more than the grains of sand on the beach. प्रभु, हम आपको क्या चढ़ा सकते हैं और आपको क्या दे सकते हैं? Or what can we offer to you? What can we give to you? आपने अपने आप को हमारे लिए चढ़ा दिया। You have offered yourself for us. प्रभु, हम केवल आपकी स्तुति और महिमा कर सकते हैं। Lord, we can just praise you and glorify you. केवल ये कह सकते हैं कि खुदावन अनुग्रही से हमारा उद्धार हुआ है। We can just say only by faith, only by grace we have been saved. केवल आपकी दया और करुणा की वजह से। Only by your grace and your mercy. पवित्र आत्मा, Holy Spirit, हमारी मदद करें help us कि हम आखिरी सांस तक that till our last breath हम उस प्रेम से जो यीशु के लिए है जलते रहें। that we would burn with that love for Jesus. कि आखिरी सांस तक That till our last हम breath विश्वास योग्यता के साथ अपनी दौड़ को दौड़ें। we will run our race faithfully. और जब अपनी आखिरी सांस लें प्रभु, And when we take our last breath, तो तुझे धन्यवाद करें। we would be thanking you. और जब अपनी आंखें हम यहाँ बंद करेंगे, And when we will close our eyes here on the earth, तेरे सामने अनंत के लिए अपनी आंखों को खोलेंगे। we will open our eyes before you for eternity. प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ Lord Jesus, you said, I go and prepare a place for you. कि जहाँ मैं रहता हूँ तुम भी मेरे साथ रह सको। That where I live, you can also live with me. आप धन्य हो प्रभु, You're blessed, Lord. आप भले हो, आप बहुत अच्छे हो। You are good, you're so We good. give you praise.
हम आपकी स्तुति We करते हैं, give you glory. आपको महिमा We देते give you honor. हैं, आपका आदर करते In Jesus' name. हैं यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. आमेन। You can be seated. आप बैठ सकते हैं। You guys tell them to bring the tea. Hallelujah. कैसे हैं आप सब? हाँ? Okay. Hallelujah. So, बुक में बहुत कुछ है, बट मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दूंगा. There's so much in the book, I'll give you a glimpse of it. ओके कि आप उस जय में जो प्रभु ने हम सब के लिए जो जय उसने करी, So the victory that Jesus has won for us. he not only defeated devil for us, he defeated devil as us. उसने केवल शैतान को हमारे लिए नहीं हराया, लेकिन हम हमारे साथ मिल करके हमारी जगह हो करके उसको हराया। ओके आज जब मैं कितने सारे मसीहों की बातें सुनता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है. Today when I hear many believers talk, I feel very sad for them. बिकॉज गलत शिक्षाओं ने ना उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है. Because wrong teachings have corrupted their minds. अभी आपको हमने बैंड पहनाया है. We've given you a band when you entered. ये इसलिए था कि कई बारी क्या होता है कि लोग बाहर वॉशरूम जाते हैं This is because many times people go to the और आप देख रहे washroom हो इतनी भीड़ भाड़ होती थी, तो वो कोई और उनकी जगह में बैठ जाता था and you see many people that were outside, they would come and sit in their place. और फिर बहुत कुछ होता था बाहर, आपको पता है And जो a बाहर lot of ruckus would happen. सो हमने सोचा कैसे हम एक तरीका निकालें कि आपको अच्छे से हम लोग सर्व कर सकें कि अगर कोई बाहर जा रहा है हमें पता हो कि वो पहले अंदर बैठा था. So we thought how to find a good way to navigate through someone going out we would know was already sitting inside. क्योंकि कई लोग 12 बजे आते हैं Some people come at 12, और कई लोग 8 बजे आ जाते हैं. but some come at 8 in the morning. ओके और वो लड़ते हैं फिर अंदर आने के लिए. And those at 12, they तो come and हमने fight. ये बैंड निकाला, So we brought a band. तो एक बंदा बाहर लड़ने लग गया. ये 666 का बैंड बना रहे हो आप. So one man started to fight outside. You're giving me a band of 666. Wrong teachings have robbed Christians of their inheritance in Christ Jesus. गलत शिक्षाओं ने मसीहों से उनकी विरासत चोरी कर ली है. They live as victims and cowards. वो बेचारे बनकर, डरपोक बनकर जीते हैं. Okay? Seeing demons everywhere. हर जगह उनको दुष्ट आत्माएं नजर आती हैं सिर्फ. It's time to take the demonic lens out. समय है कि वो दुष्ट आत्मा वाले जो चश्मा है वो उतार दें. It's time to put the lens of Christ ये समय है मसीह का चश्मा पहनने का and see everything through the finished work of Lord Jesus Christ of और Nazareth. सब कुछ को मसीह के उस काम जो खत्म हो चुका है उसके द्वारा देखना शुरू करने का. Amen. Amen. अगर गॉस्पेल नहीं समझा If you did not understand the gospel, तो उस जय में भी नहीं चल पाओगे. then you will not be able to walk in that victory either. Because the Bible tells us in Romans 1:16 that gospel is the power of God for salvation. बाइबल हमें रोमी 1:16 में कहती है कि सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उद्धार के निमित्त है. Amen. सुसमाचार ये नहीं है भैया कि हम यीशु को मानते अब स्वर्ग जाएंगे. The gospel is not that we believe in Jesus now we'll go to वो heaven. है, That वो is भी a है. part of it. That's a starting point. वो उसका शुरुआत है. Jesus didn't just die to change your location, he died to change your spiritual position. यीशु ने केवल आपकी अंत की जगह बदलने के लिए नहीं, लेकिन आपकी हमेशा का जो स्थान था उसको बदलने के लिए किया जो किया है. Okay? Jesus didn't just die to take you somewhere, Jesus died to put the God's kind of life in you. यीशु इसलिए नहीं मरे कि आपको किसी जगह पर ले जाएं, लेकिन इसलिए कि जो परमेश्वर का जीवन है उसको आपके अंदर डाल दें. अरे सुसमाचार केवल एड्रेस बदलने के बारे में नहीं है. सुसमाचार आपको एक नई क्रिएशन, एक नई प्रजाति जो कभी पृथ्वी पर नहीं थी वो बनाने के बारे में है. The gospel is not about changing your address, it's about making you a new creation,
a species that never existed before. आमेन। अब जानते हैं जब बाइबल में लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, वो शब्द नया व्यक्ति नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं मसीह में आ गया, मैं सिगरेट पीता था, अब सिगरेट नहीं पीता। अच्छी बात है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपका शरीर नाश हो जाएगा। मगर मसीह गॉस्पेल इज नॉट अबाउट बिहेवियर मॉडिफिकेशन। If someone used to smoke a cigarette earlier and now they don't, that's a good thing, you should not. But सुसमाचार अपने व्यवहार को बदलने के बारे में नहीं है, वो एक नई सृष्टि के बारे में है। Gospel isn't about more willpower that I will not do something wrong. सुसमाचार इस बारे में नहीं है कि मैं ज्यादा इच्छा शक्ति रखता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अरे यही तो हर जगह सिखाया जा रहा है। This is what everybody else is teaching also. झूठ मत बोलो, Don't lie, पाप मत करो, don't sin, अच्छे काम करो। do good things. मगर सुसमाचार But the gospel is a mystery. एक रहस्य है। और अगर उस मिस्ट्री को नहीं समझे And if you did not understand that mystery, तो फिर ऐसे ही जियोगे जैसे बाकी सारी जी रहे हैं। then you will live just the way all the others do. इसीलिए बहुत जरूरी है आपका सारा ध्यान। आज एक चीज डिसाइड करो, मुझे प्रभु ये समझ दे कि मैं सुसमाचार के भेद को समझ सकूं। So decide this today and say, Lord, give me the understanding to understand the mystery of your gospel. क्योंकि आज कितने मसीह ऐसे हैं जो नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है। Because many believers today do not know what the gospel is. They are so gullible. वो इतनी आसानी से कुछ भी मान लेते हैं। जो किसी ने बोला वो निगल लिया, जो YouTube में देखा वो निगल लिया। Whatever someone said, whatever they watched on YouTube, they took it. So बहुत जरूरी है। So maybe we'll do a series and on the gospel. But gospel isn't bad news, it is good news. सुसमाचार बुरी खबर नहीं है, वो अच्छी खबर है। आपका जन्म अच्छी खबर से हुआ है। Your birth came out of a good news. ओके सो मैं आज ठीक है आराम से, मैं बहुत आराम से आज सिखाना चाहता हूँ। आराम, थोड़ा टीचिंग मोड में जाएंगे, आराम से सिखाऊंगा। कहीं जाना तो नहीं है? पिक्चर हॉल का टिकट तो नहीं बुक किया? ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे हो? Are you here? अब तो कोई टेंशन नहीं है। No हाँ, tension. संडे को थोड़ी देर फास्टिंग भी हो जाएगी तो You चलेगा। can fast for some time also. That's okay. अब तो बाहर के लोग भी बता रहे कि फास्टिंग अच्छी होती है आपके शरीर के लिए। Now people are saying fasting is good for your body. आज मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ जो 2 बजे बाहर बैठ जाते हैं लॉन में। Today I want to talk to those people who go outside and sit in the अरे lawn इतनी at 2. क्या भूख है भाई? What is that? What kind of a hunger is that? एक मील की भूख नहीं रोक सकते क्या? You can't stop your hunger for one meal. बाहर बैठ जाएंगे। They'll go and sit out. अरे खाना मिलेगा 4 बजे, 2 The food comes at 4. They will sit at 2. अरे घर में घर रह लो भाई, अगर खाना खाना You है। could have stayed home if you wanted to eat food. अरे इस घर के जो लोग हैं ना, जो बोए गए हैं, वो वचन के लिए यहाँ पे आते हैं। The people that are planted in this house, they come here for the word. और जो वचन के भूखे हो गए ना, And those who get hungry for his word, कोई तूफान उन्हें हिला नहीं सकता। no storm would be able to shake them. कोई गोलायत उनको हरा नहीं सकता। No Goliath can defeat them. Amen. So आज मैं कुछ बातें करूंगा थोड़ा सा बुक से, So I will share some things from the book. तो स्ट्रेट बात होगी। It will be straightforward. अगर बुरा लगे तो अंत में प्रार्थना भी होगी। If someone feels bad, we'll also pray at the end for you. ओके
मगर आप जानते हैं अगर एक पुराना घर है ना, But you एक know, पुराना दादाजी का घर था, if there's an old house, like an ancestral house, टूट रहा है, it's breaking उसमें कोई apart. रह नहीं सकता, चू रहा है, दीवार में दीमक लग गई है। Nobody can live in that house. There are termites all over. अगर एक नया घर बनाना है ना, If you have to make a new house, तो पहले जो पुराना खराब है उन नींवों को तोड़ना जरूरी है। then first the old that is rotten has to be destroyed. The foundation has to be replaced. मिट्टी के घर के ऊपर सीमेंट की भैया फ्लोर नहीं बना सकते आप, You cannot make a concrete floor on top of a dirt-made house. ओके? नया सीखना है ना, If you want to learn new, many people want to learn but there is no true learning until you unlearn the things that are wrong. बहुत से लोग सीखना तो चाहते हैं पर कुछ नहीं सीख सकते जब तक जो पुराना जो गलत था जो सीखा था उसको नहीं हटाएंगे, उससे पीछा नहीं छुड़ाएंगे. ओके? सो अगर जय में चलना है, If you want to walk in victory, आपको उस जगह में आना पड़ेगा you have to come to that place. और अपने मन में ये निर्णय करना पड़ेगा कि जो कुछ शिक्षाएं मैं सुनता हूं, YouTube में देखता हूं, लोगों को कहते हुए सुनता हूं, चाहे कितना भी पॉपुलर बंदा बोल रहा है, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना. You have to come to a place where you will say, if I hear a teaching on YouTube, I hear a believer speaking about something, no matter who the person is, how popular, if they do not speak something aligned to the word, I will not receive it. मैं हमेशा आपको बोलता हूं, इस कलीसिया में भी अगर हम कुछ ऐसी बात बोलें जो वचन के अनुसार के विपरीत है, तो हमसे आके बोलो आप गलत सिखा रहे हो. So I always say this, if in this church we teach something which you find is against the word, come and tell us you're teaching wrong. क्योंकि इस कलीसिया में हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊंचा जो है वो परमेश्वर का वचन है. Because in this church the highest authority is the word of God. Amen. So शुरू करें थोड़ा खोल के. All right, hallelujah. कलीसिया में आज एक इम्बैलेंस है. There is an imbalance in the church today. और वो इम्बैलेंस क्या है? What is that imbalance? That people have become devil conscious. कि लोगों की मानसिकता जो है वो शैतान के इर्द गिर्द है. उनकी जो चेतना है ना, उसमें ये शिक्षाएं, ये जो शिक्षा है ना, जो शैतान दुष्ट आत्माएं, जनरेशनल कर्सेस, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, और ये दुष्ट आत्मा और पूरी चेतना को क्या कर दिया है, उसको करप्ट कर दिया है. In their awareness, all they have is the devil, that demonic spirit, generational curses, that demon. Their entire awareness is corrupted by these wrong teachings. And people don't realize. और लोग नहीं पहचानते. But the more they focus on the devil, the more they magnify him. जितना ज्यादा वो शैतान पर ध्यान देते हैं उतना ज्यादा उसकी महिमा कर रहे हैं. So सब कुछ शैतान कर रहा है. टायर पंचर हो गया, शैतान ने मेरा टायर पंचर So कर दिया. everything the devil is doing, their tire gets punctured, the devil has punctured my अरे tire. शैतान के पास और इम्पोर्टेंट काम है आपके टायर पंचर करने से. Devil has more important works than puncturing your tire. इतना वेला नहीं है वो टायर पंचर करने आएगा. He's not jobless. Are you getting what I'm saying? Because they are obsessed with these teachings, everything becomes demonic. क्योंकि उनकी मानसिकता में ये बातें घूमती रहती हैं तो वो इस हर बात को दुष्ट आत्मा से, शैतान से जोड़ते हैं. And the enemy loves attention. और शैतान को पसंद है, दुश्मन को पसंद है जब उसको कोई अटेंशन देता है. जितना ज्यादा शैतान करोगे उतना बड़ा शैतान हो जाएगा. The more they'll do devil, the bigger the devil becomes in their life. शैतान कहेगा, अरे भाई सारे मेरे बंदे यहाँ हो, The devil will call all his guys, come इस here. घर में रेड कारपेट बिछा है हमारे लिए. There's a red carpet for us in this house. ओके, ठीक है अभी तक? You're okay?
I am teaching you today how you can develop a victorious mindset. मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एक जयवंत मानसिकता को बना सकते हो अपने जीवन में। There are two extremes in the body of Christ. मसीह की देह में दो विपरीत छोर हैं Both are unhealthy. और दोनों ही अस्वस्थ हैं। One is where they talk about demons all the time, curses, दुष्ट आत्माएं, all these things. पहला जहां पर वो हमेशा दुष्ट आत्माओं की, शैतान की और श्रापों की बात करते हैं, 24 घंटे इसी बारे में बात करते दूसरा छोर जहां पे वो ऐसे जीते हैं जैसे शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता. The other extreme where they live as though the devil doesn't even exist. They are completely unaware of the wiles of the devil. उनको दुष्ट की युक्तियों के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है। We have to stand where Bible tells us to stand. हमें वहां पर डट कर खड़ा होना है जहां बाइबल हमसे कहती है खड़े होने के लिए। Okay? And I want to tell you, और मैं आपको बताना in your story, आपकी कहानी में Satan is not the center. Jesus Christ is the center figure. शैतान आपकी कहानी का केंद्र नहीं है, यीशु मसीह आपकी कहानी का केंद्र है। Okay? Do you know there are no scriptures which tells us to go after Satan and fight the Satan? क्या आप जानते हैं कोई भी वचन ऐसे नहीं जो हमसे कहता है कि शैतान के पीछे जाओ, उससे लड़ो। The Bible says fight the good fight of faith. बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। The Bible tells us to resist the devil. बाइबल हमसे कहती है शैतान का सामना करो। That means he's coming to us. We are not coming. We are not going. इसका मतलब वो हमें परखने के लिए आ रहा है, हम नहीं जा रहे उससे लड़ने के लिए। And what does the Bible say? When you resist him, what will happen? और बाइबल क्या कहती है, जब आप उसका सामना करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो भागेगा, मगर कैसे भागेगा? He will run. दुम दबा के अपना लंगोट पकड़ के भागेगा. With his tails within his legs. ओ पास्टर जी, वहाँ छतरपुर के ऊपर इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है. Oh, pastor, there is a big demon over Chhatarpur. ओ अंकल जी, छतरपुर के ऊपर यीशु बहुत बड़ा है. Oh, uncle, there is a huge Jesus over Chhatarpur. उस दुष्ट आत्मा से भी बड़ा है यीशु. That Jesus is much bigger than that demon. जितनी भी बड़ी हो दुष्ट आत्मा हो, वो चींटी है यीशु के आगे. No matter how big a demon is, it is an ant before Jesus. The Bible says, बाइबल कहती है God will crush Satan under your feet. परमेश्वर शैतान को कुचल देगा आपके पांव के नीचे। He's not saying under my feet. He's already under God's feet. But he's saying, my child, my son, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे पांव के नीचे मैं शैतान को कुचलूंगा. वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पांव के नीचे, but he's saying, my son, my daughter, I will crush the devil under your feet. Amen. यानी अपने जीवन में जितने शैतान के काम हैं, परमेश्वर आपको दिखाएगा. आपके पांव के नीचे हर एक शैतान का काम कुचला जाएगा यीशु के नाम में. This means every work of the devil against your life, the Lord will show you that he will crush that work under your feet. किसके पांव के नीचे? Under whose feet? बोलो मेरे पांव के Say नीचे. under my feet. पास्टर सामर्थ ने एक स्पॉन्टेनियस गाना बनाया था जब हम फेथ अरीना 1 के इनॉग्रेशन में थे. Pastor Samad made a spontaneous song in Faith Arena 1. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की. Come on church. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे. कहाँ पे? शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है. Come on, declare. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की. Come on, declare it. शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है
खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, हे शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। कई विश्वासी खोपड़ी देख के डर जाते हैं। Believers are आज scared of घोषणा skulls. करो, खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की 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 खोपड़ी है। तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन 1 2 तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, तो मैं जम के तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान ये जय की ललकार है यीशु मसीह की जीवित कलीसिया की। This is the shout of victory of the living church of King Jesus. शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, Come on, declare the victory. शैतान की हर एक जादू टोना आपके पाँव के नीचे, every witchcraft is एक under your feet, बीमारी आपके पाँव के नीचे, every हर power of एक darkness। कलेश आपके पाँव के नीचे। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी है मेरे शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी, शैतान की हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, हर दुष्ट की ताकत है, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी है, हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, हर दुष्ट की ताकत है, हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है, हर जादू टोना है, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू, हर कलेश और शराब है मेरे पाँव के नीचे, हर कलेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे, हर कलेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे, हर क्लेश और श्राप है, हर रोग बीमारी, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी
की ताकत, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की, शैतान का राज्य, शैतान का राज है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का, शैतान की सेना, शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे। हे! शैतान की खोपड़ी, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, हे! शैतान की, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की मेरे पाँव के नीचे, हे! शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति। चलिए टीचिंग में आगे। दिस वाज जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव ये आपको सिर्फ एक दृष्टिकोण देने के लिए था, कि शैतान कहाँ है। that where the devil belongs. ओके, सो ना तो इस कुएं में जाना है ना उस खाई में जाना है। Neither do we have to go into that ditch, nor into this pit. परमेश्वर का वचन का जो मार्ग है उसमें चलना है। The word of God is our path, is our way we should walk in. मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं ऐसे मसीहों से मिलता हूँ ना, मुझे I meet- बहुत दुख होता है उन पे। When I meet such Christians, such believers, I feel very bad for them. और वो इतने जिद्दी हो गए हैं अपनी उन चीजों में कि वो उनसे बाहर नहीं आना चाहते। And they've held on to these teachings and now they're stuck with them. They cannot come out of them. बिकॉज उनकी चेतना को, उनकी कॉन्शियंस को करप्ट कर दिया है गलत शिक्षाओं ने। Because their conscience, their awareness has been corrupted by these wrong teachings. एक परिवार मेरे पास आया, A family came to me one time. उनकी बेटी की एक डेथ हो गई थी और Their daughter had बाकी died. दो बेटी बची। तो किसी के पास गई, किसी पास्टर ने उनको बोल दिया ये मृत्यु की आत्मा आ रही है और ये जो है सबको लेके जाएगी। मैंने कहा क्या नॉनसेंस है ये। They had gone to a pastor and the pastor said, this is the spirit of death and it will take everybody with him. And I said, what nonsense is that? अरे अगर मृत्यु की आत्मा आ रही है तो अधिकार ले लो उसके ऊपर। If the spirit of death was coming, why didn't you take authority over it? ओके, सो एक्चुअली जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ना, मैं आज आपसे सच बोला, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसकी वीडियो बनाएंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, मगर इसीलिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और इस देश में रखा है। I know many people will say many things, but I know why the Lord has anointed me and kept me in this जब country. आप ट्रेडिशन टीचिंग के अगेंस्ट जाओगे ना तो शैतान बहुत लोगों को खड़ा कर देगा आपके विरुद्ध। When you will go against traditional teachings, the devil will raise many people against you. क्योंकि इन शिक्षाओं से उसने कई विश्वासियों को अपना बंधक बना रखा है। Because through these teachings, the devil has made many believers his slaves, in his bondage. Come on. मुझे याद है मैं एक देश में जा रहा था I remember I was going to a और nation मेरे बगल में एक पास्टर बैठे थे। and there was a pastor next to me. तो जब हम लैंड करने वाले थे, When we were about to land, जब आप लैंड करने वाले होते हैं तो आपको शहर दिखने लग जाता when you're about to land, you see the city, you start to see the city. है। तो उन्होंने मुझसे कहा, He said to me, मैं जब भी किसी नए देश या नए शहर में जाता हूँ whenever I go to a new city, a new country, तो मैं देखता हूँ कि शैतान क्या कर रहा है इस जगह। I see what the devil is doing there. मैंने कहा आप क्या करते हो? He said, what do you do? मैंने कहा मैं उल्टा करता हूँ। I say, I do the opposite.
मैं ये देखता हूँ कि पिता क्या कर रहा है इस देश में। I see what the Father is doing in this nation. We are not called to live in reaction to devil. We are called to live in response to the love of the Father. शैतान क्या कर रहा है उसके प्रति जवाब देते हुए नहीं जीना है हमें, लेकिन पिता जो कर रहा है उसके प्रति हमें जीना है। कुछ लोग ने इतनी दुष्ट आत्माओं की तरफ देखा कि जो परमेश्वर कर रहा है वो देखा ही नहीं। Some people kept on looking towards what the devil was doing, that they forgot to look at what God is doing. यीशु ने कहा, Jesus एक said, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, मगर जो वो पिता को करते हुए देखता है वो करता है। तो जो पुत्र है वो किसको देखते हैं? शैतान को नहीं, पिता को देखते हैं। Jesus said, the son by himself can do nothing except what he sees the Father do. The sons don't look at the devil, the sons look at the Father and what the Father is doing. Satan should be the last of your concern. शैतान आपकी आखिरी चिंता होनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं ये क्या बोल दिया? Some people are wondering what am I saying. I said Satan should be last of your concern. शैतान आपकी चिंता की सूची में आखिरी होना चाहिए। आपका पूरी चेतना, आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर और उसके वचन में बढ़ने की ओर होना चाहिए। All of your awareness, all of your conscience should be towards God and His Word and growing in it. मगर जब वो आए When He comes, तो वो करो जो यीशु ने करा। then do what Jesus did. Jesus, when Satan came, जब शैतान आया यीशु मसीह का विरोध करने, When the devil came to tempt Jesus, came against him. Okay, let me first address something. जो spiritual warfare के नाम में जो nonsense होती है, आत्मिक, all the nonsense that happens in the name of spiritual warfare. ऊंचे पहाड़ों पे जाओ, Go to high mountains. bind the high territorial spirits. वो जो ऊंचे पर बड़ी दुष्टात्मा उनको बांधो। मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ? Why am I telling you? मैं एक वो बंदा नहीं बोल रहा जो बाहर से जिसने ये चीजें देखी हैं, मैं वो बंदा बोल रहा हूँ जो अंदर जिसने ये सब किया है, टाइम वेस्ट। I'm not speaking as a guy who has observed from the outside. I'm speaking as a guy who has done it from within, wasted my time. ऐसे ग्रुप में था मैं, I was a part of such a group जहाँ हम ऊंची जगहों में जाते थे, where we would go to high places ऊंची दुष्ट आत्माओं को बांधने के लिए। to tie those high demonic spirits. कुछ ऐसी जगहों में गए, We went to some such places. वहां पे कुछ था एक फ्लोर का, There was something there, one floor. तो बोला टूट यीशु के नाम में, We टूट said, break, break in Jesus' name. टूट टूट टूट। Break, break, break. आज भी आप कई लोगों को देखेंगे वो ये एक वर्ड चिल्लाते रहेंगे, टूट टूट टूट, आउट आउट आउट। You will see many people who still do the same thing. और फिर गए अगले महीने तो देखा एक जो फ्लोर था वो 2 फ्लोर बन गया। And next month we went, we saw one floor became 2 floors. क्या कर रहे थे हम? What were we doing? टाइम वेस्ट। We were wasting our time. क्यों? Why? क्योंकि किसके पीछे भाग रहे थे? What were we running after? शैतान के पीछे। After the devil. क्या एक भी आयत है बाइबल में? Is there शैतान के even पीछे? one verse in the Bible? यीशु ने दुष्ट आत्मा को कब निकाला? जब वो लोगों को चंगा कर रहा था, कोई चिल्लाने लग गया, उसने चल निकल। When did Jesus cast out demons? When he was about healing people, someone started to scream. He said, "Get out." दुष्ट आत्मा ही नहीं ढूंढ रहा था, He वो was not- बीमारों को चंगा कर रहा था। He was not hunting for demons. He was healing the sick. सो आज हमें समझना है ये जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। Today we have to understand the spiritual मैं जो warfare. इस ग्रुप में था, The group that I was a part of, वहां पे बुक थी उनके पास सारी दुष्ट आत्माओं के नाम, they had a book that had the names of all the demons. thousands of names, ऊजू, हजारों बूजू, नाम. गोजू, बोजू, मोजू। Too much emphasis on spiritual warfare has made so many believers devil conscious. आत्मिक मल्लयुद्ध पर बहुत ज्यादा
चेतना लगाने ने बहुत से विश्वासियों को शैतान के प्रति कर दिया, चेतना को उनकी। Are we in a warfare? क्या हम एक मलयुद्ध में हैं? Absolutely yes. बिल्कुल हैं। But what is true spiritual warfare? पर सच्चा आत्मिक मलयुद्ध क्या है? True spiritual warfare is the fight between truth and lies. सच्चा आत्मिक मलयुद्ध सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है। Come on. फिर से इस बात को बोलता हूं कि आप इस बात को समझो। I'll say it again so you understand. असली आत्मिक मलयुद्ध ऊपर हवाओं में नहीं हो रहा, आपके दो कानों के बीच में हो रहा है। True spiritual warfare is not happening up in the atmosphere. It's happening between your two ears. यहां हो रहा है, कहां हो रहा है? It's happening in your mind. सो बाहर जा रहे हैं वो लड़ने के लिए, They are going out to fight, मगर यहां ध्यान नहीं दे रहे। but they're not focusing here. असली मलयुद्ध कहां हो रहा है? Where is the real warfare happening? In the Garden of Eden, अदन के बगीचे में devil didn't come to Eve with a weapon, he came with a suggestion. शैतान एक हथियार लेकर नहीं आया था हवा के पास, वो एक सुझाव लेकर आया था। अगर इतनी ताकत होती उसके अंदर तो दोनों को उड़ा देता, वहां पे दोनों की गर्दन काट देता, खत्म खेल। If the devil had so much power, he could have killed both there. The story was over. Because devil knew he has no power, so he had to deceive Adam and Eve to take the authority which God had given them. क्योंकि शैतान जानता था उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसको उनको धोखा देना पड़ा, वो अधिकार उनसे छीन लेने के लिए छल के द्वारा जो परमेश्वर ने उनको दिया था। हेलो, कहाँ चले गए? Where are you? वापस आ। Come back. ये चेतना का ही तो खेल है, चेतना को ही तो पकड़ना है, The whole thing is about your awareness. इसी को तो ट्रेन करना है। This is ये what जो you have to चेतना भाग जाती है हर जगह। The awareness that runs away again and again. You have to learn to catch it. राजमा बने, आज कड़ी बने, शाम को किससे मिलना है? Who do you have to meet in the evening? What's for lunch? That's the training. यही प्रशिक्षण है। So many people have learned so much spiritual gymnastics outside and have not learned to take control over their thoughts. बहुत से लोगों ने शारीरिक रूप में बहुत सारा आत्मिक जिम्नास्टिक सीख लिया स्पिरिचुअल वॉरफेयर के नाम पे, पर अपने विचारों को नियंत्रण में लाना आज तक नहीं सीखे। Being ignorant that the spiritual warfare is not happening outside in a location, it's happening in their minds. इस बात से अनजान है कि आत्मिक मलयुद्ध किसी ठिकाने पर शारीरिक जगह पे नहीं हो रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है, उनके विचारों में। And Satan is a master deceiver. और शैतान धोखा देने में एक नंबर का है। Okay? So, कई हैं वो, प्लीज अंडरस्टैंड माई हार्ट। मेरा दिल समझना, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग समथिंग, आई एम अगेंस्ट द रॉन्ग टीचिंग्स। मैं गलत शिक्षाओं के खिलाफ हूँ। जिसने मसीहों को जो जैवन से भी बढ़कर हैं उनको बंधन में डाल दिया है। Those wrong teachings which have put the believers who are more than conquerors into bondage. और मैं ये खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति का नाम बोलता हूँ। दिल्ली में एक व्यक्ति है, उनका नाम टॉम वाइट था। I'm not saying this myself. A man named Tom White was in Delhi. और वो जो स्पिरिचुअल डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिलीवरेंस जो पूरा डीमन जिसके अंदर नहीं भी है उसके अंदर भी घुसा देंगे। And all those deliverance ministries that try to cast out demons that don't even exist. और वो कह रहे थे कि 40 साल हमने वो किया, 40 साल पहाड़ों में जाके, हाई प्लेसेस में जाके दुष्ट आत्माएं। He said for 40 years we did that. We went to high places, to different mountains to bind the demons up there. और वो कह रहे थे हमारी मिनिस्ट्री में कोई फ्रूट नहीं था, उसका कोई फल नहीं था। And he said our ministry had no fruit. और आखिरी में In the end, एक दिन वो 40 साल बाद घर आए after 40 years he came और अपनी home one पत्नी day को बोला, and told his wife, हनी, God has delivered me from deliverance ministry. उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे ये छुटकारा देने वाली सेवकाई से छुटकारा दे दिया है। अगर सुसमाचार नहीं समझोगे तो हर मीटिंग में उल्टी करते रहोगे। If you don't understand the gospel, you'll be vomiting in every meeting. आपको तेल पानी पिला पिला के पेट फुला देंगे।
They will keep feeding you oil and water and your stomach will swell. क्या मैं ये कह रहा हूँ दुष्ट आत्माएं नहीं होती लोगों के अंदर? Am I saying No. people don't बिल्कुल have होती demons? हैं। No, people have और हम demons. निकालते हैं, And we cast them out. मगर उसके लिए जो पहली बार मसीह के पहली बार चर्च आया, But those who come for the first time to the Lord, to the church, उसके लिए नहीं, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। एक पवित्र आत्मा का मंदिर वह उल्टी कर रहा है, ये उसके मंदिर को शोभा नहीं देता। not for those who are the temple of the Holy Spirit. If a temple of the Holy Spirit is vomiting because of things, it's not good for it. जानो आप कौन हो कलीसिया, Know who you are, church. आंखें खोलो और जानो मसीह ने आपके लिए क्या किया है। Open your eyes and see what Jesus has done for you. कहां आप बिठाए गए हो? Where you have been seated, you placed. अरे उसका वचन कहता है कि पिता ने जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तो हमें भी जो पाप में मरे हुए थे यीशु मसीह के साथ जिलाया और सारी प्रधानताओं से, सारे सामर्थ से, सारी दुष्ट आत्माओं से बहुत ऊपर स्वर्गीय स्थान में मसीह के साथ बिठाया है। The Bible tells us when the Father raised Jesus from the dead, we who were dead in our sins, the Father raised us up together with Christ and made us sit in the high place above all the principalities and powers and darkness. Amen. कई लोग फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, Many people are looking for a formula. एक टेम्पररी सोल्यूशन मिल जाएगा। You'll get a temporary solution. ले हैंड पावरफुल है, Laying hand is powerful. बट वी कैन नॉट मेक इट द फोकस ऑफ आवर मिनिस्ट्री। लेकिन हम उसको अपनी सेवकाई का केंद्र नहीं बना सकते. क्योंकि आप भी परेशान हो जाओगे भीड़ में और मुझे भी परेशान कर दोगे। Because you'll be tired and I'll be tired. मैं आपको सत्य सिखाना चाहता हूं जो आपको हर बंधुआई से आजाद कर देगा। I want to teach you the truth that will set you free from every bondage. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। I'm giving an एक example. परिवार है A family, और उनको बार बार पेट में दर्द हुआ, एक्सट्रीम दर्द। and they felt pain in their stomach again and again, extreme pain. डॉक्टर के पास गए, ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला इन्फेक्शन है। They went to the doctor, they found out there's an infection. तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी, Doctor gave them antibiotic. उन्होंने एंटीबायोटिक खाई, They ate the antibiotic. दर्द चला गया। The pain left. 2 हफ्ते बाद After 2 weeks, दर्द दोबारा आ गया। again the pain occurred. फिर डॉक्टर के पास गए, Went to the doctor, ब्लड टेस्ट किया, did the blood पता test. चला दोबारा वो इन्फेक्शन आ गया। Again the same infection. दवाई दी, Took the medicine, दर्द चला गया। pain left. 2 हफ्ते बाद, 2-3 After हफ्ते 2 बाद दोबारा आ गया। After 2 weeks, again the same pain. जो ले हैंड है ना वो एंटीबायोटिक है। Laying hands is like antibiotic. मैं बहुत जरूरी है एंटीबायोटिक, It's important. Antibiotic is important. जिंदगी भर ले हैंड में तो नहीं जी सकते। You cannot live all your life through lay hands. एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री भागते रहो You'll keep running from one ministry to the other अगर सत्य नहीं सीखा। if you don't learn the truth. सो तीसरी बार डॉक्टर पे गए, So the third time he went to the ब्लड doctor. टेस्ट हुआ, There was a blood test पता done. चला फिर से इन्फेक्शन है। Again the same infection. तो डॉक्टर ने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है, The doctor said there is some problem. ऐसा नहीं हो सकता। This cannot happen. तो एक टीम को भेजा गया So कि a उनके team- घर में क्या खाते हैं क्या पीते हैं। So a team was sent to find out what they eat and drink. तो पता चला उनका जो पानी का कनेक्शन है उसमें सीवर लाइन से गंदा पानी मिल के आ रहा था। They got to know that their water connection was connected to a sewer line and dirty water was coming to their तो वो house. जब पानी पीते थे The water they were drinking इन्फेक्शन अंदर हो जाता। was causing infection. अब मुझे एक बात मैं आपसे आज पूछता हूँ, Now tell me something I want to क्या ask वो you. परिवार एंटीबायोटिक खा खा के पूरी जिंदगी जी सकता है? Can that family live like this depending on antibiotics all क्या their चाहिए life? उन्हें? What do they उन्हें need? एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, उनको पानी को चेंज करना है। They don't need the antibiotic, they need to change the water. जब तक वो पानी पिएंगे As long as they will drink that water, उसका जो रिजल्ट है वो ये होगा कि उनको इन्फेक्शन होगा। the result of that will be it will cause an infection in their body. आप गए मिनिस्ट्री में, आपके ऊपर ले हैंड हुआ, अच्छा है एंटीबायोटिक है, कुछ टाइम के लिए वो चीज चली गई, मगर अगर सोच नहीं बदलोगे तो वहीं गड्ढे में चले जाओगे जहां से आए थे। You went to a ministry, they laid hands and you were delivered for some time, but if you do not change the way you think,
you'll go to the same ditch where you were before. इसीलिए हाँ, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो एंटीबायोटिक तो चाहिए, If you need instant relief, you need an antibiotic. मगर एंटीबायोटिक के साथ But along with सबसे that, पहले पानी को चेंज करना है। first change the water. कई लोग आज बंधन में हैं बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग थिंकिंग। Many people are in bondage today अपनी गलत सोच विचारधारा के कारण. ले हैंड दुष्ट आत्मा को तो भगा देगा, Lay hand will make the demons flee. मगर ले हैंड आपकी सोच को नहीं बदल सकता। माइंड रिन्यू करना है तो वचन सुनना पड़ेगा, वचन के अंडर बैठना पड़ेगा। But lay hand cannot renew your mind. If you want to renew your mind, you have to sit under the word. You have to learn the word. आपने देखा है जिस दिन हम ले हैंड करते हैं क्या होता है, बाहर पूरा लॉन में जगह नहीं थी, गेट में जगह नहीं थी, 1500 लोग बाहर चले गए। You see, when we do a lay hand service, there are so many people outside in the lawn. There was no space in the facility. That tells you why the church is like that. ये हमें बताता है कि कलीसिया ऐसी क्यों है. क्योंकि उन्हें वचन नहीं चाहिए, Because they do not want the word. उन्हें ले हैंड चाहिए। They want a lay hand. ठीक है, ले हैंड ले लो। ठीक है, take the lay hand. एंटीबायोटिक खा के तुम डिसाइड करो, जिंदगी भर एंटीबायोटिक खाओगे, फिर बीमारी आएगी, फिर ऐसे ही जीना है तो जियो। You decide if you want antibiotic and then again get sick and take an antibiotic again. That's how you want to live all your life. या स्रोत को बदल दो। Or you can change the source. आमीन। आत्मिक मलयुद्ध असली में जो गलत झूठ हमने शैतान के विश्वास किए हैं उनको रिप्लेस करना है, उनको हटाना है परमेश्वर के वचन के सत्य से। True spiritual warfare is when you remove the lies that you have received from the devil through the word of the living God. कई मसीह हैं घर पे अकेले हैं, Many believers, they are alone at their house थोड़ा पत्ता हिला, and a leaf shook, थोड़ा पंखे से पेपर हिला, a paper moved because of the fan. हुई 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 हो गया। Oh, now they're afraid. अंधेरा हुआ It got dark. तो सबसे पहले चेतना कहाँ जाती है? हाँ, काला साया खड़ा है। The first awareness they have is there's a dark shadow. ठीक है, काला साया खड़ा है, मान लिया मैंने, काला साया खड़ा है वहां Okay, पे है, मान लिया। I believe it, there's a dark shadow. अरे तो यीशु तो अंदर ही है ना। The Jesus is still inside you. लाइट गई और अंधेरा हो गया तो यीशु थोड़ा ना छोड़ के चला गया। अरे वो जो ज्योति है वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। If there was dark and if it got dark outside, the one who is called the light is still living in you. कि यीशु मसीह ने कहा ओह यार लाइट चली गई थी भाई, मैं थोड़ा डर गया था, मैं स्वर्ग चला गया था। So Jesus said, oh, there was no light, so I also got afraid and I went to heaven. अरे अपने सोचने के नजरिए को बदल डालो। Change the way you think. आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। You are the temple of the Holy Spirit. पुराने नियम में जब जो वाचा का संदूक था वहां पे एक देवता था, उनका नाम, जिसका नाम था डेगोन, जिसकी वो आराधना करते थे। In the Old Testament, we read about a temple of the god they worship called Dagon. और वहां पे उसके मंदिर के अंदर संदूक रख दिया। And they kept the Ark of the Covenant inside his temple. संदूक में क्या था? What was inside the 10 Ark? आज्ञाएं, The Ten मन्ना Commandments, some और manna, एरन की रॉड। and Aaron's rod. ओके, ठीक है। पुराने नियम में वो रिप्रेजेंट करता था परमेश्वर की ग्लोरी, उसकी उपस्थिति को। In the Old Covenant, it represented God's glory, His वहां presence. रख दिया, So they kept it there चले गए। and they left. जब सुबह आए In the morning when they came, तो देखा डैगन की मूर्ति टूट के सर के बल उसके आगे गिरी हुई है। and they saw that the statue of Dagon fell on its face and it broke. अरे वो संदूक था। It was just अरे an ark. आपके अंदर तो जीवित यीशु रहता है। The living Jesus lives inside of you. कलीसिया ये समय है हम सुसमाचार में खड़े हो जाएं Church, this is the time we stand in His gospel और समझ जाएं कि असली सुसमाचार क्या है। and understand what true gospel really is. आमेन, हालेलुया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। I'll give you another example. बुक में बहुत सारे हैं, The book has many examples. थोड़े से दे रहा हूँ। I'll give you some.
सोचो एक व्यक्ति पार्क में बैठा है, Imagine a man is sitting in the park. उसके पास गन है. He has a gun. यूएस में आप गन ले सकते हो आराम से. In US, you can easily buy guns. तो यूएस में वो व्यक्ति So the guy is in US. गन है, He has a gun. पार्क में बैठा है, बेटा बगल में खेल रहा है. His son is playing right next to him. एक वैन आई, A van came. अचानक से रुकी, दरवाजा खुला, The door opened. मास्क पहन के 4 लोग बाहर आ गए. 4 people came wearing a mask. बच्चे को पकड़ा, Took the kid. वो चिल्ला रहा है, The child is पापा मुझे screaming. बचाओ, पापा बचाओ. Dad, save me, save me. और व्यक्ति कुछ नहीं कर. And the guy does nothing. उस बच्चे को उठाकर उन्होंने वैन के अंदर फेंका, They kidnapped the kid, threw him in the van, और वैन स्पीड से चली गई. and the van rushed off. ये व्यक्ति गुस्से से पुलिस स्टेशन जाता है This man got so angry and went to the police station और उनसे कहता है, and tells them, मेरा बेटा किडनैप हो गया, my son got kidnapped. तुमने क्यों नहीं कुछ किया? Why didn't you do anything? तो सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोर्ट में चला गया केस. So the case goes to the court. सीसीटीवी था कैमरा वहां पे पार्क They में. had a CCTV camera in the park. फुटेज निकाली गई, They got the footage out. जज ने फुटेज देखी, The judge sees the footage. इसके पास गन थी, He had a gun. 4 लोग आए, 4 people came. इसने कुछ नहीं किया. He did nothing. He was charged as guilty of that kidnapping. तो उसको उस किडनैपिंग में दोषी ठहराया जाएगा उसके लिए. क्यों? Why? क्योंकि जो उसके पास था उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया. Because he did not use what he had. जब आप यीशु में आए, When you came to Jesus, आप कीड़े, आप प्रभु हम कीड़े, हम कुछ नहीं. oh, we are worm, Lord, we are nothing. फॉल्स ह्यूमिलिटी से नफरत है परमेश्वर को. God hates false humility. रिलीजियस लोग जो होते हैं ना, हाइपर रिलीजियस, वो ऐसी फेक ह्यूमिलिटी दिखाते हैं. Hyper religious people उन्हें show लगता है such कि fake ऐसा humility. करके हम ऐसे खुश, ओ खुदावन हम तो नाली के कीड़े हैं खुदावन. And they think by this God will be pleased. Oh Lord, we are a worm. Heaven's access is shut. स्वर्ग का जो प्रवेश है उनके लिए बंद हो जाता है. अगर इस ड्रामे बाज को साइड कर, Put this dramebaz somewhere else. उसको पता है वो ड्रामा कर रहा है. He knows he's acting. मतलब परमेश्वर ने नाली के कीड़ों को स्वर्गीय स्थान में बिठा रखा है यीशु के साथ. So God has put worms in the kingdom of heaven on the throne. अरे जानो कि तुम कौन हो मसीह में. First, know who you are in Christ. हर एक चीज की कीमत कैसे पता चलती है मुझे बताइए. How do you find out the value or the worth of everything? अगर मैं आपके जूते देखूं और मैं कहूं ये जूते कितने के हैं, आपको कैसे पता वो कितने के हैं मुझे बताओ. If I see your shoes and ask you the cost, how did you know the cost? तो प्राइस टैग अभी लगा है क्या जूते में? Is there still the price tag on it? हाँ, आप क्या, जितना दाम चुकाया जाता है उसके लिए ये बताता है उस चीज की कीमत कितनी है. The amount of money you paid to get those shoes tells you the worth. एक जूता 200 रुपए का भी आता है, You can buy और a आज shoe ऐसे for भी जूते 200. हैं जो 1 लाख के भी आते हैं, 2 लाख के भी आते हैं. Today you have shoes worth 1 lakh, 2 दोनों lakh. जूते हैं. Both are shoes. मगर अगर एक जूते के लिए एक व्यक्ति 3 लाख रुपए दे रहा है, यानी वो जानता है कि ये जूता इसकी इतनी कीमत है. But if a man is paying 3 lakh to buy a pair of shoes, he knows that these are worth 3 lakh. जब मानव जाति पाप की बंधुआई में चली गई When mankind went under the और slavery of परमेश्वर sin, को मानव जाति की कीमत चुकानी थी, and God had to pay the price for तो mankind, सोना और चांदी से भी नहीं चुका सकता था. he could not have paid it with तो gold उसने and silver. सबसे कीमती चीज, बाइबल कहती है तुम्हारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी से नहीं हुआ, मगर परमेश्वर के लहू से तुम खरीदे गए हो. अरे अपना दाम समझो कि आप कितने कीमती हो. You are not saved by gold and silver which perishes, but by the blood of God himself. Find out, get to know how precious you are to him.